Good morning, students. It is class number 2 of chapter number 11, which is conic section. In previous class, I have introduced you about the conic sections. तो उसमें जो है मैंने आपको बताए थे कि कॉनिक सेक्शंस का मतलब कोन के अगर हम एक प्लेन से उसको काटेंगे अगर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में, तो डिफरेंट डिफरेंट जो 2 डायमेंशनल कर्व्स आएंगी, तो वो थे हमारे पास जैसे सर्कल और पैराबोला और इलिप्स और हाइपरबोला। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़े थे। तो लास्ट क्लास में हमने उसके लिए बहुत डिटेल से डिस्कस किया था और उसके रिगार्डिंग मैंने आपको एक वीडियो भी क्लास ग्रुप के अंदर भेजा था। ओके, तो और इसके साथ साथ मैंने जो है आपको सर्कल भी इंट्रोड्यूस करवा दिया था। तो एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, आपको थोड़ा सा मतलब जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप इस वीडियो को जरा ठीक से देख लेंगे और सर्कल से आप जो है एक बार फिर स्टार्ट करेंगे। तो सर्कल क्या था हमारे पास कि डेफिनेशन ऑफ द सर्कल वाज कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट where fixed point is known as the center of the circle. This was the set of all points in a plane which are equidistant from a fixed point. मतलब this distance, this distance, this distance, this distance, this distance. So all these distances are equal. Where fixed point is known as the center of the circle. ठीक है? एंड व्हाट इज ये तो था सर्कल की सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट वेयर फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ दैट सर्कल। यस इट इज। तो व्हाट विल बी द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल? तो सर्कल की जनरल इक्वेशन मैं आपको डिराइव करके दिखा देता हूं कि हाउ कैन वी डिराइव द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सपोज दिस इज 2 डायमेंशनल प्लेन in which ये मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया सिर्फ। तो सपोज द सेंटर ऑफ द सर्कल इज h, k एंड लेट p x, y be the point on this circle. तो the line segment joining the center and any point on the circle that is known as radius. So that is radius. So you can see that in figure कि OP is equal to R. So that means OP square is equal to R square. Now use distance formula, क्योंकि मैंने पहले ही स्क्वायर कर दिया तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो दैट इज x माइनस h टू द स्क्वायर प्लस y माइनस k टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अ सर्कल। नाउ बेस्ड ऑन दिस we have example number 1. What is example number 1? Let us see example 1. What is that? Question is find the equation of a circle with center 0 0 and radius r. So center is 0 0. So that means you know that in this general equation of a circle center is h, k, right? And radius is r. So that means this is h, k and radius, इसमें radius that is given already r. So therefore equation of circle with center 0 0 having radius r, that is using this formula x माइनस 0 टू द स्क्वायर और h और k की वैल्यू मैंने क्या रख दिया 0 0 प्लस y माइनस 0 टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंटर एट 0 0, राइट? ओके, नाउ वी हैव another example number 2. Example number 2. Let us see what is that.
Second example, find the equation of a circle with center minus 3 2, center is minus 3 2 and radius that is 4, or center is h, k. ठीक है, यस सर. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल? इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x minus h to the square y minus k to the whole square is equal to r square. Now put x plus 3 to the square, h is replaced by minus 3 now, plus y minus k to the whole square is equal to r square, that is 4 to the square. So it can be written as x square plus 6x plus 9 y square minus 4y plus 4 is equal to 16, or it can be written as x square plus y square plus 6x minus 4y, 9, 4, 13 or minus 3 is equal to 0. So that is the general equation of this circle, right? So it was the equation of circle. Now we have another example, example number 3. Third example. Third example is find the center and radius of the circle. The equation of circle is given by x square plus y square plus 8x plus 16y sorry 8x plus 10y minus 8. Eight is equal to 0. Yes, x square y square plus 8x plus 10y minus 8 is equal to 0. तो इसमें हमने निकालना है सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल. मतलब जो से हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना, हमारे पास सेंटर और रेडियस गिवन था, हमने जनरल इक्वेशन निकाली. अब हमारे पास जनरल इक्वेशन गिवन है, हमने सेंटर और रेडियस निकालना है. तो क्या बिल्कुल इसका रिवर्स कर दो. तो क्या है कि इसको x माइनस एच टू द होल स्क्वायर y माइनस के टू द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इस तरह से हमने बनाना है. तो कैसे करेंगे हम, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे? तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 8x, एक्स और 8 हम एक साथ रख दो, एंड y स्क्वायर प्लस 10y एक साथ रख दो इक्वल टू 8 हमने इधर रख दिया. अब क्या करते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, सबसे पहले हमें देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट y स्क्वायर का कोफिशिएंट इनका 1 होना चाहिए है इसके अंदर. तो अब इसमें क्या वर्किंग रूल होता है कि x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे आप. तो इसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 8 है, इसका हाफ 4 का स्क्वायर 16 ऐड करेंगे आप. तो जो हमने इधर अपनी तरफ से ऐड किया उसी को इधर भी कर देंगे बैलेंस करने के लिए. और इसमें भी y के कोफिशिएंट 10 है, उसका हाफ कितना हुआ 5, उसका स्क्वायर 25 ऐड किया, तो इधर भी 25 ऐड कर दो. तो ये बन गया, देखो ये क्या बना, x माइनस एक्स प्लस 4 टू द होल स्क्वायर एंड y प्लस 5 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 7 का होल स्क्वायर. 49 बन गया नहीं, तो 7 का स्क्वायर. तो कंपेयरिंग विद x माइनस एच टू द होल स्क्वायर y माइनस k टू द होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर. तो here h is minus 4, k is minus 5, radius is 7. So that means center is minus 4 minus 5 and radius is 7. Right? So this was the center and radius of this circle. So this was example number 3.
Yes, now we have example number 4. What is fourth example? Fourth is, find the equation of the circle which passes through the point 2, minus 2. It passes through 2, minus 2. 2 minus 2 and 3, 4. 3, 4 and whose center lies on the line. Suppose this is HK, center O, and center lies on the line that is given by x plus y is equal to 2. Right? We have to get the equation of this circle which passes through these 2 points A and B. Suppose this is A point, this is B point, and whose center lies on this circle. तो आपको पता है कि हमारे पास जो जनरल इक्वेशन क्या होती है, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल बी x minus h to the square y minus k to the whole square is equal to r square. It is number 1 equation. Now because it passes through A 3, 4 and B 2 minus 2. तो इस पास कर रहा है तो इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहां तक जहां पर x है वहां तो हम रख देंगे 3 और जहां पर y है वहां पर रख देंगे 4। रिप्लेस करो तो 3 माइनस एच टू द स्क्वायर प्लस 4 माइनस के टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एंड दूसरी इक्वेशन भी कर लेते हैं। जब ये 2 माइनस 2 से तो x की जगह 2 रखो तो 2 माइनस एच का स्क्वायर और y की वैल्यू आप रखेंगे माइनस 2 माइनस के टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट। और इस कैन बी सिंप्लीफाइड एज 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h और 16 प्लस के स्क्वायर माइनस 8k इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h और स्क्वायर a प्लस बी टू स्क्वायर से ओपन करो 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 4k इज इक्वल टू आर स्क्वायर। नाउ सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस प्लस माइनस 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 एच स्क्वायर कैंसिल आउट के स्क्वायर कैंसिल आउट आर स्क्वायर कैंसिल आउट। यहां से इक्वेशन का 9 माइनस 3 4 दिस इज 5 और माइनस 2h और 16 that was what was this 16 minus 4 12 और minus 12k equal to 0 और it can be written as 2h plus 12k is equal to 70। ठीक है, it is equation number 2। Also we have center lies on this, since center h comma k lies on line x plus y is equal to 2, that means center will satisfy this equation also, so that means h plus k is equal to 2। और क्योंकि आपको इसके साथ सॉल्व करना है 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2h प्लस 2k is equal to 4 और it is number 3। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इसको सॉल्व करो। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इसको सॉल्व करेंगे आप। यहीं पे लिख लेते हैं। We have 2h plus 12k is equal to 17
and 2h plus 2k is equal to 4. Subtract 10k is equal to 13, k is equal to 13 by 10. जब k 13 by 10 आ गया तो अब आप रखेंगे क्या, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें कर दो, तो ये आ जाएगा k यानी कि 13/10 प्लस k इज इक्वल टू 2. तो k इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 13/10, 20 माइनस 13, 7/10. राइट. अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यस, अब इन दोनों को मिटा दो. नाउ वी हैव दिस इज नंबर, इक्वेशन नंबर ए पुट कर देंगे हम इसको, इससे रेडियस निकल आएगा. तो देयरफॉर फ्रॉम ए 3 माइनस एच की वैल्यू है हमारे पास से कितना, सॉरी इट वाज 13k, ये एच है. तो एच इज 7/10 और 4 माइनस के इज 13/10. 4 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आर स्क्वायर इज 12.58. तो रिक्वायर्ड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट, x माइनस h was 0.7, y minus k is 1.3 is equal to r square is 12.58. So this was the required equation of the circle, right? तो देखो बेटा, हमने अब एग्जाम्पल कर लिए हैं. अब एक्सरसाइज 11.3 से आपने जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं ये करेंगे, और डाउट हम जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. तो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ फॉर टुडेज क्लास. विल मीट नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे. टिल देन, goodbye, have a nice day.